Very good morning, dear students. Class 12. Today I am going to start a key concept to study about the key concept of the realization account. Actually, student, in the last video, the last point was realization account, and there were some problem about the realization account कि सर जो है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा. तो उस दिन तो आपने बुक की भाषा देखी थी, बुक के लैंग्वेज में आपको बताया गया था कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है. Actually, this chapter is going on dissolution of a partnership firm, and in case of dissolution of partnership firm, all the assets which assets inside the balance sheet is given, all the assets will be sold out, will be realized out, या sold out in the market, and the amount which are recovered by the selling of assets that will be used for the repayment of the liability of the firm. ठीक है. So about this concept, first of all, if I'm talking about the accounting treatment, first of all we are going to prepare realization account, next about the partners capital account, and last about the balance sheet. When I'm talking about the realization account, so realization account, you have some understanding about the realization account, that here we are going to record all assets by record all liability. So that is already done in the last videos. Today we are studied about the how will pass a journal entry when in the question about the journal entry is given कि आपको जो journal entry करनी है, then how will you deal. तो first of all आज थोड़ी सी deep पॉइंट में जाएंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट का की कंसेप्ट फाइनल करेंगे, और एकदम जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इन द रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म विल बी यूज टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स. देखिए एक दूसरे से कंपेयर करूंगा क्या क्या आपको करना है. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डेबिट साइड टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स, एंड यू नो स्टूडेंट रियलाइजेशन अकाउंट इज सेम एज द नॉमिनल अकाउंट. दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट का. एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, ऑन लायबिलिटी विल बी क्रेडिट. बट first of all here you have to follow the terminology about the assets and liability. Always the assets showing a debit balance, तो ये डेबिट में जा रहा है, liability का क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में जा रहा है. Okay, to record all assets by record all liability for the purpose of realization, and when your assets will be realized, when your assets will be sold out, it will be recorded in the buy side here by bank. ठीक है, by bank. Assets realized का मतलब कितने में बिका. Suppose that there are information about the land and building will be sold out 10 lakh. So here you will put by bank 10 लाख रुपए. ठीक है. एंड असेट्स जो आपने रिकॉर्ड किया था, ये जितनी बार बिकेगा जो पैसा आएगा दैट विल बी पुट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ विल यू राइट, बाय बैंक. And there are liability are given, and all the liability will be paid by the debit side to bank, payment of liabilities. Student, in the balance sheet there are asset side that is given debtor, and in the debtor then can be possibility of provision for doubtful debt. So provision for doubtful debt, if it is given in the balance sheet, that will be credited in the realization account by provision for bad and doubtful debt. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमें सारे प्रोविजन को इधर रिकॉर्ड करना है, पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपको जो मिलेगा वो प्रोविजन फॉर बैड डेट मिलेगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट आप हमेशा किधर रिकॉर्ड करेंगे, बाई साइड. ठीक है. प्रोविजन का कोई पेमेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे. तो रिकॉर्ड ऑल लायबिलिटी, रिकॉर्ड ऑल असेट्स कर दिया. असेट्स बेचने से पैसा आया तो बाई साइड में रख दिया, लायबिलिटी का पेमेंट किया तो टू बैंक से कर दिया. ठीक है. अभी और भी हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद ये देखिए, कभी कभी क्या होगा कि जब इस फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम इस पे कुछ खर्चे आते हैं, कुछ कमीशन हो सकता है, कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं रियलाइजेशन करवाने के. ठीक है. तो यह हो सकता है आपने टेंट वगैरह लगा करके जो है सामान को बेचना स्टार्ट किया, नीलामी करना स्टार्ट किया, दैट मे बी, बट देयर मे बी अकर जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ इट इज पेड बाय फर्म, हियर टू यू विल यूज व्हाट, टू बैंक फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंस. अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट दिया है तो दैट इज योर एक्सपेंस, दैट विल बी डेबिटेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक. ठीक है. ये हो गया. यहां देखिए मैं दो बातें कर रहा हूं बेटा. एक तो हमने बात की कि अगर पैसा बैंक से गया, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट बैंक से हुआ, या रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया तो टू बैंक. लेकिन अगर उसी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट पार्टनर ने कर दिया तो टू पार्टनर कैपिटल हो जाएगा. देखो यहां पर भी लिखा, क्या लिखा है, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर. ठीक है. अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट पार्टनर करेगा तो आप 2x कैपिटल, अगर x ने किया तो x कैपिटल, y ने किया तो y कैपिटल, z ने किया तो z कैपिटल, फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर. एंड इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस, means realization expense is given 1000 2000, but there is no information who are paying that amount, then you will use to bank. It is assumed that that amount is paid by the
firm. And all the liabilities is written here in the credit side. Out of those liability, if any liabilities paid by partner, अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट फर्म करता तो टू बैंक यूज होता, लेकिन अगर लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करेगा तो पार्टनर के नाम पे जाएगा, ठीक है। यक्स ने किया तो यक्स के नाम पे, वाई ने किया तो वाई के नाम पे। सेम यही पॉसिबिलिटी जो है असेट्स के केस में लागू होती है। असेट्स में भी अगर असेट्स बिका तो बाई बैंक, लेकिन अगर उसी में से किसी असेट्स को किसी पार्टनर ने पसंद कर लिया, किसी को जो है चाहिए वो असेट्स, तो अगर वो असेट्स ले लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल इफ असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। सो इफ लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, दैट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. If the assets is taken over by the partner, it will be recorded credit side of the realization account. I think there are no any doubt. And all the credit and all the debit आप करेंगे. If your credit is more than debit, you will use to profit on realization, and if your debit is more than credit, to buy loss on realization. That will be distributed among the all partner, among the old partner, या all partner कह सकते हैं, in old ratio. The ratio is given in your question. If there is no any information, you will use equally about the all partner. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ये आपको बताया गया था कि असेट्स को रिकॉर्ड करते समय और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते समय कुछ चीजों को हम कंसीडर नहीं करते हैं. असेट्स में भी बहुत से असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज में भी बहुत सी लाइबिलिटी होती है, बट आउट ऑफ टोटल असेट्स, आउट ऑफ टोटल लाइबिलिटी, सम लाइबिलिटी we have to ignore, some assets we have to ignore for at the time of preparation of realization account. What will be? देखिए, तो बेटा जब हम असेट्स रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स रिकॉर्ड करते समय कैश और बैंक नहीं रिकॉर्ड करना है, ये ध्यान रखिए. ये आपको जितने भी आइटम हमने लिखे हैं आप कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, एकदम क्लियर कट लिखा गया है, आपको ज्यादा इससे मिलेगा नहीं, ठीक है. तो कैश और बैंक आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, ओके. कैश और बैंक आपको नहीं रिकॉर्ड करना. सेकंड पॉइंट पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये हमेशा आपको किधर मिलता है सर? ये तो हमको मिलता है लाइबिलिटी साइड में, बट कभी कभी अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस आता है तो वो आपको मिल जाता है असेट साइड में, ठीक है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है ये भी आप असेट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे. ना तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड करना है, ना तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करना है, और ना ही आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट रिकॉर्ड करना है, ठीक है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स, हियर टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स मींस फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दैट विल बी रिकॉर्डेड. दैट विल बी, अगर गुडविल की बात आएगी, देखो ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट को रहती है, अगर गुडविल की बात आएगी तो बेटा गुडविल भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे. ये आइटम जो हमने लिखा है इसको आप लिस्टेड कर लीजिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, जो हम कह रहे हैं उसको आप सुनिए. ये सारे आइटम अगर आपको मिले एसेट साइड में तो इसको आप रिकॉर्ड मत करिएगा. बाकी जितने आइटम मिलते हैं दैट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. एंड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं रिकॉर्ड होगा, और जनरल रिजर्व भी नहीं रिकॉर्ड होगा, WCR भी नहीं रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट तो कभी नहीं रिकॉर्ड होता, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है. लायबिलिटी साइड में पार्टनर का भी लोन मिल सकता है, बैंक लोन या अदर लोन मिल सकता है. अगर बैंक लोन है या अदर लोन है मींस अगर पार्टनर के लोन के अलावा कोई लोन है तो दैट विल बी रिकॉर्ड क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. अगर बैंक लोन है तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर पार्टनर का लोन है तो इसका आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, कभी रिकॉर्ड नहीं होता है. अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर पार्टनर लोन यहाँ भी, पार्टनर लोन यहाँ भी. ये पार्टनर लोन जो है ये फर्म ने लिया है, सॉरी ये पार्टनर ने लिया फर्म से तो ये सीधे कैपिटल में से उनके कम हो जाएगा. ये फर्म ने लिया है पार्टनर से तो फर्म अभी इस पार्टनर को पेमेंट करेगी, ठीक है. तो वो क्वेश्चन करते समय आप ध्यान देंगे. बाकी आज इतना ही कंसेप्ट है जो आपको बताया गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है. एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा आपको रिलेशन अकाउंट में कुछ मिलने वाला नहीं है. क्वेश्चन करते समय हम खुद आपको बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम जो है एग्जाम्स में जो है वो जर्नल एंट्री की बात करता है. तो जर्नल एंट्री हम सीखेंगे कि अगर हमें रिलेशन अकाउंट बनाना आता है तो जर्नल एंट्री भी हमको जो है आनी चाहिए. इसमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजी जो है आगे जुड़ेंगे, जैसे रिलेशन एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट है, आगे जो है ये जो आपने यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंस देखा, ये इस रिलेशन एक्सपेंस का 4-5 केस आपको पढ़ना है. इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं कि जो है कि आप इसके लिए जान दे दो, ऐसा कुछ नहीं है. रिलेशन एक्सपेंस है, बस ठीक ठाक चलेगा, ठीक है. क्योंकि बहुत लोग इसके सीरियस हो जाते हैं ना, हमको ये नहीं आता वो नहीं आता. तो चलिए ठीक, अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की. जर्नल एंट्री, चूंकि हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि अगर हमारे दिमाग में लेजर है तो हम जर्नल एंट्री बड़े आसानी से कर सकते हैं. अब देखो कैसे करेंगे. रिलेशन अकाउंट अगर ऊपर है, अगर हमने इस टाइप का आइटम हमें रिकॉर्ड करना है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होकर के 2 लग जाएगा. वैसे भी आपको ये 2 सिर्फ कॉपी करना रहता है, ठीक है. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 2 कर सकते हैं ऑल.
तो अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स क्या जाने एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, टू असेट्स अकाउंट। अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट का क्या मोटिव है सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स का यहां मोटिव है कि आपने जो असेट्स को सेलेक्ट कर रखा है दैट विल बी रिकॉर्ड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर एक साथ रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटी, ये देखो रूल है ना, लेजर का तो रूल होता है। अब इसको पकड़ा, ये ऊपर था तो ये टू साइड में चला गया, इसको पकड़ेंगे तो अभी ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो लेजर का रूल होता है, कई बार बताया गया है, अगर आइटम आप क्रेडिट से उठाते हैं तो वो ऊपर होकर के डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर आपने आइटम डेबिट साइड से उठाया तो सीधे रियलाइजेशन डेबिट होकर के टू जो है अमाउंट चला जाता है। अब यहाँ पे आप इस साइड से उठा रहे हैं क्रेडिट साइड से, तो अब ये ऊपर चला जाएगा। सीधी सी बात है, रिलेशन अकाउंट में आपको एंट्री करनी है। रिलेशन अकाउंट अगर आपने ऊपर से उठाया तो डेबिट का आइटम टू साइड में जाएगा, क्रेडिट का आइटम डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो चलिए वहां पे अब अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की बात आएगी तो क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? ऑल लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज ना लिख करके हम सिर्फ लायबिलिटीज लिखते हैं, क्योंकि ऐसे भी होते हैं जिनको छोड़ना पड़ता है। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट जो आपने सेलेक्ट किया जिसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और ये लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वैसे भी अपोजिट साइड है भी, तो अपोजिट साइड से एंट्री भी की गई है नरेशन के तौर पे, बीइंग असेट्स और रिकॉर्डेड, बीइंग लायबिलिटीज और रिकॉर्डेड, ठीक है। इसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब आप पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करेंगे तो देखो किसी के दिमाग में आता है, जैसे बोल दिया हमने क्या क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, या बिल्स पेबल का पेमेंट किया गया, या बैंक लोन का पेमेंट किया गया, तो स्टूडेंट जनरली एग्जाम में क्या एंट्री पास करते हैं? क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक लोन में दिया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जबकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी भी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए उस पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम नहीं लेना, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो यू विल यूज डायरेक्टली ओनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिर्फ क्या यूज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक when it will be recorded when you are going to pay any liability. बीपी का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट, बैंक लोन का पेमेंट, डजंट मैटर। फॉर द पेमेंट यू विल यूज ओनली रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यू नीड नॉट टू हियर क्लियरिफाई दैट आई एम पेइंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, आई एम पेइंग अमाउंट ऑफ बीपी, इट्स नो नीड, ओनली रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन केस ऑफ जब आपके असेट्स रियलाइज होगा, असेट्स रियलाइज, जब आपके असेट्स रियलाइज होंगे, रियलाइज का मतलब जब वो बिकेंगे, तो जनरली फिर देखो जब आपके असेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो जब आपके पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। वैसे हम बैंक ही चल रहे हैं तो बैंक ही चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू। अब ये नहीं कि हमने बिल्डिंग बेचा तो टू बिल्डिंग, असेट्स फर्नीचर बेचा तो टू फर्नीचर, यहां भी ध्यान रखेंगे असेट्स बिकेगा पैसा आएगा, और पैसा जो आएगा वो रियलाइजेशन के ही नाम से जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसी भी पर्टिकुलर असेट्स को आपको क्लेरिफाई नहीं करना कि ये किसका पैसा है, बस ओनली यूज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अगर पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। आगे, इफ लायबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर किसी लायबिलिटी की जिम्मेदारी लेता है कि मैं पे करूंगा। अच्छा बेटा, अगर आप पेमेंट करते किसी लायबिलिटी का तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, लेकिन अभी क्या हो जाएगा यहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग एनी लायबिलिटी यू विल यूज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट इफ द लायबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर यू विल यूज ओनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
वहां भी क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो किस लाइबिलिटी, सपोज दैट कि अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इज टेकन ओवर बाय द एक्स, तो आप लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, ओनली एक्स, यू नीड नॉट टू क्लेरिफाई दैट इज अ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर या दैट इज अ पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल. ओके, एंड आफ्टर दैट if assets is taken over by partner, अगर एसेट्स को पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया तब आप क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखो जस्ट अपोजिट, अगर एसेट्स का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, यही क्योंकि बैंक नहीं डेबिट हो पाएगा, पैसा नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account. What will you write? Partners capital account debit to realization account. That is very easy concept. You need not to take any tension that means it will be handled or not. बहुत easy है, कुछ करना नहीं है, बस आपके दिमाग में लेजर होना चाहिए और उससे रिगार्डिंग जो है कंसेप्ट होना चाहिए कि how we will deal about the ledger to journal और journal to ledger. ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए, यहाँ नरेशन लगा दीजिएगा, जो ही ऊपर लिखा हुआ है नरेशन आप कर दीजिएगा. आगे बात करते हैं अभी और भी बातें हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, कुछ और बातें रह गई हैं, चलिए उसकी बात करते हैं. अब देखिए दो बातें यहां होंगी. इफ रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, पहला, if realization expense paid by partner. So there are two cases available. Realization expense that is firstly paid by the firm and next time if the expenses paid by the partner. तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, सीधे सीधे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. अब एक्सपेंस की भी बात नहीं करेंगे कि हम सर रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे, नो, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कि सपोज कर लो कि 25 रुपए का खर्चा आया रियलाइजेशन करवाने में, तो सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. और आपने लेजर में भी देखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस का. बट इफ दैट पेमेंट इज मेड बाय पार्टनर देन यू विल यूज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. क्योंकि अगर इसको पार्टनर ने अपने पॉकेट से दे दिया, तो पार्टनर ने अपने पॉकेट से दिया तो तुम्हारे पॉकेट से तो जाएगा नहीं, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अमाउंट विच यू हैव टू पे बाय द बैंक दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2500 एंड 2500. तो अगर हमने बैंक से किया तो बैंक, अदरवाइज आप सीधे सीधे क्या यूज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इतना तो मुझे नहीं लगता कोई जो है ज्यादा डाउट होना चाहिए किसी को, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा. और इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद जब आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा, आप कैसे करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे, टोटल क्रेडिट करेंगे, टोटल डेबिट करेंगे. अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट आता है तो क्या एंट्री हो जाएगी? जस्ट देखो, कनेक्ट कर सकते हैं आप तो खुद बता सकते हैं, तो माहिर हो चुके हैं. इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन में प्रॉफिट शो करेगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल. सो आप कह सकते हैं कि सर ऑल द पार्टनर्स जो है हो जाएगा यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स कैपिटल. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड. ठीक है, इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. यहाँ पे न्यू रेशियो कोई बात होनी भी नहीं है. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यहाँ तो हमने नाम लिख दिया है क्लेरिफाई करने के लिए, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी लॉस. अगर लॉस होता है तो क्या होगा आपका? लॉस की कंडीशन में, इन केस ऑफ लॉस, if there is loss is given, then how will you deal? For the purpose of loss, when your debit is more than credit, you will pass a journal entry about
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. दैट इज वेरी इजी. टू रियलाइजेशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. तो ये पुराना कंसेप्ट है बेटा, यहां आपको सोचने की जरूरत नहीं है. दैट वो जो भी केस आपके सामने आएगा उस तरीके से आप जनरल एंट्री पास कर लेंगे. ठीक है, 6 मार्क्स का एग्जाम में रियलाइजेशन की रिगार्डिंग जनरल एंट्री जरूर आती है. ठीक है, तो ये आपको आज के लिए क्लियर हो चुका होगा. रियलाइजेशन एक्सपेंस के केस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट बाकी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है क्लियर कर दिया जाएगा, कैसे आपको वहां पे सोचना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट बनेगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है बेटा वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है. लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, अब देखिए हर चीज यहां पे कितना लिखा जाएगा, तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है. लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्लेम गिवन है, तो जितने का क्लेम गिवन है वो क्लेम सीधे सीधे टू बैंक से पेमेंट होकर के यहां बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लग जाएगा. ठीक है, सपोज दैट कि 5000 रुपए का क्लेम आया, तो हियर यू विल राइट बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5000 एंड दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, दैट्स व्हाई यू विल यूज फॉर द पेमेंट ऑफ दैट क्लेम टू बैंक. एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच आर लेफ्ट बिसाइड्स ऑफ यूजिंग क्लेम, 10,000 का था, 5,000 रुपए यूज हुआ, तो रेस्ट ऑफ द 5,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर बाय यूजिंग ओल्ड रेशियो. Okay students, so I think that is enough for today. Thank you, have a nice day.